हमारा अगला जो सेशन है वो है विजुअल मीडिया और हमारे स्पीकर्स हॉल में पधार चुके हैं. सो वील बी स्टार्टिंग दिस सेशन सून. Visual media at 2047. The visual media plays a vital role in creating an atmosphere of awareness, turning the society. Visual media refers to different communication channels or ways through which knowledge and information is conveyed to the viewers or the readers through television, cinema, posters, etc. Whatever is supplied through the visual media have fast and long-lasting effect on the minds of the viewers. Visuals allow reinforcement of a written or verbal message by creating an easy way to remember the message. Visual media shall be an important tool for building the next 25 years and creating the Bharat of our dream, the Bharat at 2047. And to show us the pathway, I would like to call upon the stage our speakers of the session, Visual Media at 2047. May I request Ms. Padmaja Joshi ji, Shri Aman Chopra ji, Mrs. Shefali Vaidya ji, Shri Kushal Mehra ji, the speakers of the session, and Shri Abhijit Iyer Mitra ji, the moderator of the session on the stage, please. तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे स्पीकर्स का स्वागत किया जाए. तालियां चलती रहनी चाहिए. हम लंच के बाद मिले हैं तो बहुत ज़्यादा जोश है और जब नारी शक्ति का सेशन हुआ है तो जोश दुगना हो चुका है हमारा. Yeah, may I introduce our first speaker, Ms. Padmaja Joshi. She is the executive editor. Though she doesn't need any introduction, everyone is aware of who Padmaja Joshi is. Every time you switch on Times Now at 9 p.m. and you see a beautiful smiling face, asking very tough questions. But as the duty calls, so I'll introduce her. With almost decade and a half in TV journalism, she brings her experience of news gathering into studio along with her unique style. Anchor of the famous primetime show, The News Hour. May I call upon Captain Meera Dave to felicitate Ms. Padmaja Joshi. कभी कभी एंकर को भी एक मौका मिलना चाहिए. सो आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी दिस टाइम. थैंक यू. श्री अमन चोपड़ा जी is a senior editor and Network 18 and anchors the award-winning debate show देश नहीं झुकने देंगे. He is one of the finest Hindi TV journalists and anchor of Bharat. He holds an experience of more than 20 years in journalism. Ladies and gentlemen, may I call upon Prince on the stage to felicitate Shri Aman Chopra ji. Mrs. Shefali Vaidya ji is a Pune-based freelance writer, newspaper columnist, and media personality. She is a mass communications master degree holder and a multilingual author who writes in Marathi, English, Konkani, and Spanish, among many other languages. She has one of the largest social media followers, including me for sure. May I call upon Dr. Kinjal Desai to felicitate Mrs. Shefali Vaidya ji. Shri Kushal Mehra ji is a well-known podcaster and textile entrepreneur. In his own words, he is a dharmic skeptic
who finds doubt elevating. His primary interest lies in redefining Indian skepticism via Indian epistemological categories. May I call upon Ghanshyam Bhai to please felicitate Shri Kushal Mehra ji, please. Shri Abhijit Iyer Mitra, we all know him very well. We heard his wonderful oration yesterday as a speaker. Today, he'll be helping us being the moderator of this session. Shri Abhijit Iyer Mitra ji is a senior fellow at the Institute of Peace and Conflict Studies, a defense economist. He appears regularly in the print and on TV. He is the author of 2 books and currently is undergoing his PhD studies at King's College, London. May I please call upon Harsh to felicitate Shri Abhijit Iyer Mitra ji. Dhanyavad, and the session is yours. So the guns have been pointed now. Okay, so initially we were going to start this with about 2 minutes of an opening statement, but तो हम शुरुआत करने सॉरी आरंभ करने वाले थे कि हर वक्ता जो इधर बैठे हैं उपस्थित हैं वो एक 2 मिनट की टिप्पणी दें पर थैंक यू पर पद्मजा जी मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आप 3 सबसे बड़े चैलेंज क्या महसूस करते हैं आजकल के विजुअल मीडिया में और मेरी हर स्पीकर से विनती है कि वो अपने प्रोनाउंस प्लीज आइडेंटिफाई करें शुरू करने से पहले मेरी आवाज़ आ रही है अब ओके मैं हिंदी और इंग्लिश के एक मिक्स में बात करूंगी आई थिंक इट विल बी इजियर फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड चैलेंजेस जो इस वक्त विजुअल मीडियम आई थिंक किसी भी मीडियम के सामने है वो सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्या आपकी एक इंडिपेंडेंट सोच है क्योंकि आज का थीम है कि आप आज से करीब एक जो 2047 इंडिया 2047 की बात कर रहे हैं तो अगले कुछ साल कैसे आप डिफाइन करेंगे बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ मीडियम you have the responsibility of also communicating a vision. Now this may seem like a very grand sort of a delusion that you have about yourself. But the fact of the matter is that any medium, whether it be print, whether it be TV, whether it be Hindi, whether it be English, the fact is you do have that power कि आप एक narrative को और एक point of view को shape कर सकें. This may be done, tacitly, it may be done overtly, but जो आप बोलते हैं, जो आपका point of view communicate करना है, आप क्या facts लोगों के सामने रख रहे हैं? Because आज there is so much information overload that very often it's very difficult for people to actually make sense. And in the battle of narratives, कोई अगर एक साइड हावी हो जाती है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप उस काउंटर पॉइंट ऑफ व्यू को बिलीव करते हैं तो आप उसको भी इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें बट टू डू दैट यू हैव टू बी एब्सोल्युटली सर्टेन कि जिस चीज़ के बारे में आप बोल रहे हैं आपका खुद का उस पर क्या स्टैंड है द नंबर वन चैलेंज टुडे is that in this battle of narratives everyone wants to control the medium because once you have controlled the medium
you have absolute control over the message. So as a part of the media, you have to be sure कि अगर मैं बाहर जाकर के कोई चीज़ बोल रही हूँ, वो इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि हम राइट विंग हैं या हम लेफ्ट विंग हैं या हम सेंट्रिस्ट हैं, हम इसके सपोर्टर हैं या उसके सपोर्टर हैं. आपका अपना क्या दृष्टिकोण है, आपका अपनी क्या विचारधारा है. And once you are sure of where you stand, then it is very easy for you to be clear what your point of view is on that particular subject. And that is your responsibility, number one. And it's also your challenge, number one. Because there are so many competing pressures all the time. Social media is just a very small part, which largely also is an echo chamber. So I think हम उसको ज़्यादा importance देते हैं कि भाई कितने social media pressures आ रहे हैं. और आप 4 लोग बैठ करके अपने घर पे tweet कर रहे हैं. Nobody cares, frankly. I don't think बाहर कोई दुनिया में really care करता है कि Twitter पे लोग क्या बोल रहे हैं. But there are other pressures also. For example, जब आप बाहर निकलते हो, there will be within your own friend circle, your own family, there are those pressures where people will be like, why did you say something like this? This is not what I expected of you. A friend who will meet you after 20 years will say, I didn't think you were like this. So at that moment, you have to be absolutely sure that you can turn around and say, but I am absolutely convinced of what I said. So I don't know why you would say that you didn't think I am that person, because I have always been that person. And this is the reason why I said this, because I don't just think it, I truly believe it. So that's challenge number one, to be sure of why you are saying what you are saying. Second is to be able to communicate effectively. Sometimes in the visual medium, there are many issues. A lot of people say कि भाई आप इस सब्जेक्ट के बारे में क्यों नहीं बोल रहे, उस सब्जेक्ट के बारे में क्यों नहीं बोल रहे, सिर्फ इसी पे क्यों सारा फोकस जा रहा है. Because the fact of the matter is that print has the luxury कि, actually it's unfair to say they have a luxury, I'm saying they have the benefit of कई सारी चीज़ें वो सिर्फ फ़ोन उठा करके किसी से बात कर सकते हैं and they can put it down. They don't have to think कि अच्छा अगर मैं ये बता रहा हूँ कि आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस, तो उसको मैं कैसे विजुअलाइज करूँ. आप एक 5000 वर्ड का लिख सकते हैं and you can very effectively through your words communicate. But for me to put that even for 5 minutes on air, I have to make sure that it is visually communicated effectively, because that's what I am. I'm a visual medium. So that's challenge number 2. And challenge number 3 increasingly now is to, this whole issue of जो लोग कहते हैं कि आप जो है सच्ची पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ ओपिनियन दे रहे हैं. But that's not true. Even communicating a point of view is journalism. So to be able to say that हाँ हम एक point of view दे रहे हैं, but this is not किसी के ऊपर अपना view नहीं थोपा जा रहा है. This is just to communicate an opinion or a worldview which I believe in, and I think that my viewer also deserves to know. That, in a nutshell, I think would be 3 challenges. Padmaja ji, Aman ji, 2 minutes opening statement. आवाज़ आ रही है? जो भी पद्मजा ने कहा, देखिए मेरी नज़र में नरेटिव बिल्डिंग एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा आने वाले टाइम में. हम लोग विजुअल मीडिया में हैं. मैं इसको 2 शब्दों से समझाने की कोशिश करूंगा जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है. हमेशा ही उम्मीद की जाती है, 2 शब्द बोले जाते हैं, निष्पक्षता और तटस्थता. आप लोगों ने भी सुना होगा, आप लोग कहते हैं भी पत्रकारों को निष्पक्ष और तटस्थ होना चाहिए. यू नीड टू बी न्यूट्रल एंड बैलेंस्ड. मतलब आप किसी की साइड नहीं ले सकते, तटस्थ, और आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा, निष्पक्ष. मैं इसको उदाहरण के साथ समझाऊंगा. जैसे एक एम्पायर होता है, मतलब हम लोगों की भूमिका, मैं अगर एज एन एंकर या एज एडिटर या हम लोग पत्रकार हैं, जो सबसे बड़ा चैलेंज है जो अभिजीत ने पूछा, वो हम लोगों की भूमिका एक एम्पायर की तरह होती है. अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये मेरी सोच है. एम्पायर निष्पक्ष तो है. देखिए, एक बॉलर है, एक जना बैटिंग कर रहा है, मतलब एक पार्टी है और एक पार्टी सामने है. आप निष्पक्ष हैं,
आप एम्पायर हैं, लेकिन अगर आउट होगा तो आउट तो आप देंगे, तो आप तटस्थ तो नहीं रहे, आपने बॉलर की साइड ले ली ना। तो अगर कुछ गलत होता दिख रहा है तो बोलना तो पड़ेगा, बस यही भूमिका होती है। आप निष्पक्ष हो, तटस्थ होना जरूरी नहीं है मेरी सोच में। नरेटिव बिल्डिंग के लिहाज से सबसे बड़ा चैलेंज मेरी नज़र में ये है, जैसे हम लोग नरेटिव बिल्डिंग में एक चीज़ और समझते हैं कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया इतने सालों में, नरेटिव बिल्डिंग में बताने से ज़्यादा सोच ये होती है क्या नहीं बताना, क्या छुपाना है। जैसे अगर मैं महाभारत का अगर उदाहरण दूं, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, गुरु द्रोणाचार्य को सूचना देते हैं अश्वत्थामा मारा गया, वो युद्ध के मैदान में हथियार डाल देते हैं, वो हाथी मारा जाता है। तो क्या छुपाना है और क्या बताना है, नरेटिव बिल्डिंग में सबसे बड़ा रोल है, जो पद्मजा ने कहा। हाँ, आप स्टैंड लेते हैं, अगर आपको कुछ सामने गलत होता दिख रहा है तो ये नहीं कि आप पत्रकार हैं तो आप बोलेंगे नहीं गलत है। पत्रकार की भूमिका एक एम्पायर की तरह है, आप निष्पक्ष हो सकते हैं, तटस्थ होना जरूरी नहीं है। आप बॉलर की साइड तो लेंगे ही लेंगे, नंबर एक। नंबर दो, अभिजीत, मेरी नज़र में हम लोग ना एक इंफॉर्मेशन वॉर के दौर से गुजर रहे हैं, सूचना का युद्ध है। अभी हाल फिलहाल बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई, फाइजर को लेकर एक रिपोर्ट आई, कोरोना के दौरान तमाम चीज़ें हुई। मुझे लगता है कि हम लोग बहुत पीछे हैं, मतलब मैं अपनी अगर आलोचना करूं, इंडिया बहुत पीछे है, हमारे पास अपना कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। हम यहाँ पर सब किराएदार हैं। हम लोग बहुत खुश होते हैं, ट्विटर पर नरेटिव हो गया, फेसबुक पर हो गया, हम लोग बहुत खुश होते हैं। वो तो सब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बाहर बैठकर राज कर रहे हैं उन लोगों ने हम पर, और अभी भी वो राज कर रहे हैं। वो तो बाहर का नरेटिव है, आपको पता भी नहीं है एआई के जरिए क्या आप पर थोपा जा रहा है और क्या नहीं थोपा जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है, हमारा कोई अपना प्लेटफॉर्म ही नहीं है। मतलब इतना हमारा कोई डेमोग्राफिक डिविडेंड आज तक हमने नहीं उठाया। हम 140 करोड़ की आबादी है, ट्विटर, हम तो सब किराएदार लोग हैं भाई। हम लोग लड़ाई लगते हैं, प्लेटफॉर्म आया, कू आया, कोई और खुल के आ रहा है, या ऐसी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, हम लोग उसी के अंदर ही लड़ते रहते हैं। अभी जब एलन मस्क आया, उसने बोला आपकी लेफ्ट लीनिंग थी ट्विटर की, ये लेफ्ट लीनिंग थी। और आज की डेट में जो लड़ाई है वो सारी डेटा की है। जब एआई की बात होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, या मतलब आप किसी AR VR आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तमाम चीज़ें जो आने वाला दौर है विजुअल मीडिया का, जो हमारा टॉपिक है, उस दौर में डेमोक्रेसी से बड़ी डेटा क्रेसी होगी। डेटा किसके पास है? इंडिया के पास तो डेटा, सारा डेटा सेंटर्स तो बाहर बैठे हैं, हम सबका डेटा बाहर है, और हम सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम उसको जो हमको परोसा जा रहा है वो हम देख रहे हैं। मेरी नज़र में आने वाला टाइम ना एजेंडा ड्रिवन होगा ना नरेटिव ड्रिवन, वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा। जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जैसे अभी हम किराएदार हैं, बहुत दुख की बात है कि आज तक हमारे पास कोई हमारा स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, हम लोग सब किराएदार हैं। तीसरी बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है विजुअल मीडिया की चुनौती के लिहाज से, रिसोर्सेज की है। मैं इसलिए इसको कहता हूँ रिसोर्सेज की है कि नेटवर्क बहुत बड़े होते हैं। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी जो बीबीसी की रिपोर्ट आई, हम लोग बीबीसी की रिपोर्ट को पत्थर की लकीर समझकर मान लेते हैं, या हमारी खुद की क्रेडिबिलिटी, हम अपने आप को, मतलब कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप्स होता है, हम अपनी क्वालिटी को, हम अपनी मेड इन इंडिया को कुछ नहीं समझते हैं। हमारे लिए ना फॉरेन वैलिडेशन बहुत ज़रूरी होती है। उस सोच से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, तीन चीज़ें, अपना इंडिजीनियस प्रोडक्ट, अपना इंडिजीनियस सोशल मीडिया, नंबर एक, नंबर दो फॉरेन वैलिडेशन की सोच से बाहर आना, और नंबर तीन नरेटिव बिल्डिंग के लिहाज से हमारी सोच। अभिजीत, थैंक यू। शेफाली, ऑन टू यू। Hello. Thank you, Abhijit. It was very instructive to listen to both Padmaja and Aman because they are in the field. मैं तो पत्रकार नहीं हूँ, ट्रेनिंग से हूँ, पर व्यावसायिकता से नहीं हूँ। आई एम अ ऑब्जर्वर ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन विजुअल मीडिया। तो पहली बात तो मैं थोड़ा सा पद्मजा से डिसएग्री करूँगी जब उसने बोला कि सोशल मीडिया ज़्यादा मायने नहीं रखता, ट्विटर पे क्या डिस्कशन है वो डजंट मैटर। अगर ये न होता तो हर मीडिया आउटफिट उनका सोशल मीडिया हैंडल नहीं होता, या हर जर्नलिस्ट जो यहाँ पे हैं उनका भी ट्विटर हैंडल नहीं होता। अगर ट्विटर पे कुछ इम्पैक्ट होता ही नहीं है, देन वाई आर यू ऑन ट्विटर? ऑब्वियसली
You share your clips that you think are relevant because you think it reaches more people, and that has been proven. There's a Reuters study on digital media and digital media use in India. तो उनके respondents जो थे उनमें से 68% उनके respondents में से उन्होंने बोला कि वो उनकी न्यूज़ जो है वो मेनली टीवी से नहीं, वो सोशल मीडिया से लेते हैं from the people they follow. And out of them, 31% said that they use only the mobile phones and social media as the source from which they get their news. And this is obviously going to grow. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जैसे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का पेनिट्रेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे डेटा सस्ता होगा, जैसे जैसे स्मार्टफोन की संख्या बढ़ेगी, ये जो ट्रेंड है वो तो चलता रहेगा. इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में विजुअल मीडिया में जो सबसे बड़ी चैलेंजेस हैं वो एक है कि न्यूज़ को व्यूज़ को न्यूज़ करके पास ऑफ किया जा रहा है. और ये तब शुरू हुआ जब 24/7 न्यूज़ चैनल शुरू हुए, क्योंकि कितनी बार आप बताओगे कि किसी के घर में कुछ हादसा हुआ, तो आप ब्रेथलेस रिपोर्टर्स हैं जो बोलते हैं कि मैं ये स्टेप चढ़ता हूँ, मैं इसके दरवाजे के बाहर हूँ, मैंने दरवाज़ा खोला है, मैं अंदर गया हूँ, यही न्यूज़ बताया जाता है. और दूसरी बात, विद ऑल ड्यू अपॉलजीज टू बोथ ऑफ यू एंड आई रिस्पेक्ट एंड रियली लाइक यू, बट आई थिंक देयर इज़ अ ह्यूज डिस्कनेक्ट बिटवीन प्राइम टाइम एंकर्स एंड ग्राउंड जर्नलिज्म. ये फैक्ट है, क्योंकि प्राइम टाइम एंकर्स ज़्यादातर स्टूडियो में समय बिताते हैं, वो केवल जनरल इलेक्शंस के टाइम पे दे हिट द रोड्स. दैट इज़ देयर ओनली ग्राउंड कनेक्ट. As far as I can see, most of the time they are sitting in the studio and they are opinionating. And पहले तो न्यूज़ का व्यूज़ हो गया और फिर व्यूज़ को फ्री स्टाइल अखाड़ा बना दिया कुश्ती का, कि हर कोई चिल्ला रहा है, आप बोल रहे हैं हेलो, आप बोल रहे हैं और ज़्यादा चिल्लाओ और ज़्यादा अग्रेशन हो. सारे नहीं करते, कुछ करते हैं, बट द पॉइंट इज़ ये फाइनली टेलीविजन स्टूडियो का डिस्कशन ये हो रहा है कि प्लीज़ डोंट टॉक व्हेन आई एम इंटरप्टिंग. And that is not the way you are going to change anyone's mind. As far as I can see, the future is all about technology. और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे न्यूज़ कंजम्पशन विल मूव मोर एंड मोर टू डिजिटल मीडियम. एंड बिकॉज ये डिजिटल मीडियम पे होगा, यूट्यूब चैनल से होगा या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से होगा, तो यूज़र जनरेटेड कंटेंट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जाएगा. और इसलिए फेक न्यूज़ भी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि यूज़र जनरेटेड कंटेंट जब होता है तो आपके पास वो ज़रिया नहीं होता है वो 100% सच है या फेक है ये बोलने का. सो दैट इज़ द सेकेंड चैलेंज. एंड द थर्ड चैलेंज इज़ I feel that visual media is moving more and more towards a gig-based economy. Basically, there'll be stringers in different parts of the country, and they will be feeding content to a media outfit based in Mumbai or Delhi. और आपके पास वो न्यूज़ डिस्ट्रीब्यूशन का जो पूरा मैकेनिज्म है, वो सच है क्या नहीं, वो पता करने का, वो कहीं ना कहीं ढीला पड़ता जा रहा है. और इसीलिए ये न्यूज़ को व्यूज़ बनाना और व्यूज़ को झगड़ा बनाना ये चालू है. मुझे लगता है ये 3 चैलेंजेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फेक न्यूज़ को व्यूज़ में कन्वर्ट करना, और टेक्नोलॉजी विच इज़ बेसिकली गोइंग टू चेंज ड्रास्टिकली द वे विजुअल न्यूज़ इज़ प्रेजेंटेड एंड इट इज़ कंज्यूम्ड. थैंक यू शेफाली जी. कुशल जी, आपके 2 मिनट. Thank you, Abhijit ji. I just want to point out none of the speakers identified their pronouns. My pronouns are fee, fi, fo, fum. Okay, so we're talking about challenges. I don't know if there's much of a challenge. So I was just reading recently before I came here, there's a Ernst & Young projection for India in 2047. So as per that projection, the Indian economy is estimated to be 26 trillion US dollars, and the average per capita income of India, हमारी income होने वाली है 15,000 USD per capita. चैलेंज नहीं है, अपॉर्चुनिटी है. अभी वो अक्षय कुमार का गिफ्ट लगा देना चाहिए, पैसा ही पैसा होगा बेसिकली अगर आप मीडिया में होने वाले हैं तो. दैट्स पॉइंट नंबर 1. सो आई डोंट लुक एट इट एज अ चैलेंज. इट कुड बी अ चैलेंज और इट कुड बी एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज दिस इज़ अ नेचुरल फ्लो. हम लोग एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, वी आर गोइंग थ्रू दैट चर्न. एक रियल चैलेंज होने वाला है कि द डाइल्यूशन ऑफ ट्रूथ as a concept itself is something हम लोगों को सत्य के ऊपर सोचना चाहिए. मीडिया के होते हुए फैक्ट चेकर क्यों एग्जिस्ट करते हैं? अगर मीडिया है तो फैक्ट चेकर नहीं होने चाहिए.
और पहले एक फैक्ट चेकर था, फिर उस फैक्ट चेक को करने वाले को फैक्ट चेक करने के लिए एक और फैक्ट चेकर आया, फिर उस फैक्ट चेकर को फैक्ट चेक करने के लिए तीसरा फैक्ट चेकर आया। तो इसका मतलब कि मिशेल फुको का जो सपना था कि हम एक पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में रहें, हमने वो सिद्ध कर दिया, क्योंकि देयर इज़ नो ट्रूथ। हम एजेंडा पेडल करते हैं। हम जिसको नैरेटिव बोलते हैं, क्या वो नैरेटिव है कि एजेंडा है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमें क्लियर करना चाहिए। द लाइन्स बिटवीन नैरेटिव एंड एजेंडा आर ब्लर्ड, एंड आई डोंट केयर विच साइड ऑफ द पोलिटिकल आइल एनीबडी इज, इट इज़ बेसिकली एवरीवेयर। नैरेटिव एंड एजेंडा में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती विजुअल मीडिया को होने वाली है, वो है डीप फेक। अगर स्पेशली फ्रॉम एन इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप आज, आई डोंट नो अगर आपने देखा है कि नहीं, आप अगर आज इंटरनेट पे जाके सिर्फ सर्च करिएगा, कोई भी फेमस हॉलीवुड सेलिब्रिटी, समझ लो टॉम क्रूज, उसकी डीप फेक्स को आप यूट्यूब सर्च करिएगा, आपको डिफ्रेंशिएट करने को नहीं होगा कि वो टॉम क्रूज है कि उसका डीप फेक है। एंड आपको वीडियोस मिलेंगे 5 मिनट के, 4 मिनट के, 10 मिनट के, जिसमें टॉम क्रूज की आवाज़ टॉम क्रूज बोल रहा है और वो न्यूज़ दे रहा है। अब आपने चैट जीपीटी का बेटा वर्जन तो देख लिया है, अब आप चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट बनाइए, डीप फेक से उसको क्रिएट करिए, तो उससे क्या चैलेंजेस आएंगे। मैं अपने देश की सोच सकता हूँ। अगर आज हम हमारे देश की बात कर रहे हैं, पहली बात हमारा टेक्नोलॉजिकल गैप, अमन ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम बेसिकली ट्विटर को यूज़ कर रहे हैं, मगर टेक्नोलॉजी तो हमारी है नहीं। मगर वो उनकी गलती नहीं है, हमारी गलती है कि हमने नहीं बनाया। उन्होंने बनाया, हमने उसको यूज़ किया। और नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं। ट्विटर की खासियत है कि सब लोग एक जगह पे हैं, इसीलिए जो चाइनीज़ मॉडल है वो कभी नहीं चलेगा, सबको एक जगह पे होना ही पड़ेगा। तो अगर ये केस है, और अगेन कटिंग एज एआई रिसर्च इंडिया में नहीं हो रही है, अगर आप पर कैपिटा एआई रिसर्च पेपर्स के रिजल्ट्स देखेंगे, नंबर 1 चाइना हैज़ कॉट अप टू अमेरिका बाय द वे इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ओरिजिनल रिसर्च इन एआई अक्रॉस फील्ड्स। सो अगर चाइनीज़ रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग बैरली कोई पीएचडीज निकालते हैं पर कैपिटा, उसमें भी एआई के पेपर्स हमारे बैरली होते हैं। अगर हम ये कर ही नहीं रहे हैं, हमारे देश को सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि मीडिया लैंडस्केप चेंज होने वाला। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ह्यूमन इंटरफेस नहीं होने वाला है, मगर ह्यूमन इंटरफेस रिड्यूस होने वाला है। और अगर वो रिड्यूस हो रहा है, तो आपकी स्क्रिप्ट, अभी रिसेंटली आप सब लोग ने देखा होगा चैट जीपीटी पे, कैन यू क्रैक अ जोक ऑन रिलीजन एक्स? Sorry sir, I can't do that. Can you crack a joke on religion Y? Sorry sir, I can't do that. Can you crack a joke on Hinduism? Rama said this, Rama said that, Sita did this, Sita did that. Now this is the same technology that is going to be used to create media content for all of us. That is the biggest challenge. We should be scared. Thank you. Padmaja, coming back to you, I wanted to ask you this question because you did raise this very important point that opinion is also news, because the news reporting has been done during the day, and the evening shows are context, opinions, views on what has happened during the day, unless of course there's something breaking happening at that particular point of time. How would, and yet there is this fundamental thing that what is an opinion and what is a bias? How would you categorize bias and differentiate it from opinion? To my mind, bias would be ignorant opinion. So if I am sitting there and saying something, again, you know, I don't claim to speak on behalf of everyone, but most of the people who I know and I respect, who are anchor journalists, I don't think are studio warriors, as has been recently become very popular lexicon. There is a lot of things that goes on behind the scene. I, for one, have gone out every single time there has been not just a general election, but a state election. You go out and meet people, but everything is not on camera. There are many meetings that you have with stakeholders, with politicians, businessmen, opinion makers, people who are in defense, what have you. Why is that? Because when you sit there in the evening, it's not just what has happened through the day, but for you to be able to contextualize it, you need to have that background.
I sit there, I read. It's as simple as doing a PhD. You do a daily PhD on your show every evening because, to put it crudely, because you have to be able to tell your viewer the context. If you're talking about, there is a political fight happening over what happened at Yangtze in Tawang. I can't just say that Rahul Gandhi ने ये बोल दिया, फिर बीजेपी ने ये बोल दिया, आइए अब आप उससे कांग्रेस से लाइए, बीजेपी से लाइए, you fight with each other. I am sitting there not just as moderator, which is why I said that opinion is also news, because I will also set a context for what I'm saying. तो इसमें बायस का स्कोप, जैसे आपने तवांग के बारे में बोला, अगर मैं एक लेफ्ट विंग पर्सन हूँ और अगर मैं एक राइट विंग पर्सन हूँ, won't the context itself change based on a bias? So for example, अगर मैं एक राइट विंग एंकर हूँ, मैं बोलूँगा देखिए चीन ने ये सब किया है और राहुल गांधी ने जाके साइन मारा है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU के बारे में. If I am a right wing, if I am a left wing anchor, I will say देखिए ये गवर्नमेंट फेल हो गया है, नेहरू ने कम से कम कुछ पॉलिसी तो किए थे पर वो भी अब कोलैप्स हो गया है. Which is the difference between a good anchor and a bad anchor, because if you are a good anchor, you will not state the obvious of what has already happened कि राहुल ने ये बोला है और बीजेपी ने बोला है. You will say let's step back from this and examine कि यांगसे में before what happened हमने अपनी पोस्ट कहाँ बनाई हैं, अरुणाचल में पिछले 7 साल में हमने कितने किलोमीटर की सड़कें बनाई हैं, हमने कितने डैम बनाए हैं, हमने कितने अपनी बॉर्डर पे जो हमारी डिप्लॉयमेंट है उसको रैंप अप किया है. इसकी वजह से अब चाइना इस सिचुएशन में है कि उनको लग रहा है दैट दे हैव टू कम एंड मेक अ स्टेटमेंट एट यांगसे. सो इट्स नॉट जस्ट कि हाँ जी आप भी अब कुछ बोलिए, अब आप भी कुछ बोलिए. माई जॉब इज नॉट सिंपली देयर to sit there and say अब आप बोलिए, अब आप बोलिए. I need to also have gone out and met people and actually ideally have even gone to Arunachal. I haven't gone to Yangtze, but I have been to Bumla. I have traveled the length and breadth in 2000 and 2009. Perfect, thank you. अमन जी, आपने बोला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हिंदुस्तान में ये हमारा कोई ग्लोबल प्लेटफॉर्म नहीं है, पर ये भी मैं नहीं कह सकता कि वेस्ट कोई रेसिस्ट है, क्योंकि वो अल जज़ीरा को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मानने पे एक्सेप्ट करता है. इवन दो उसका एक एंकर बोल रहा था कि जो एक मज़हब के नहीं हैं वो उनको जानवरों के साथ उन्होंने कंपेयर किया था, पर उनको फिर अमेरिका जाके एक दोहा से उनको अमेरिका ले जाया गया और उनको एक पोजीशन भी मिला हम लोगों को जानवर कहने के लिए. CGTV भी है जो चीन की है, जो लोग मानते हैं. तो एक अरबी चैनल को मान लिया, एक चीनी चैनल को मान लिया. आपका क्या एनालिसिस है कि हिंदुस्तान अब तक ऐसे क्यों प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है? रूस को भी मान लेते हैं, आई मीन RT है, जो RT एंड टर्किश TV भी है TRT. हिंदुस्तान में क्यों नहीं है? भाई मैंने तो ये सवाल उठाया, होना चाहिए. मतलब हाल फिलहाल की अगर रिपोर्ट्स देखें, वेस्टर्न मीडिया मतलब एंटी इंडिया कह लीजिए या इंडिया के राइस के अगेंस्ट, मतलब राइस के अगेंस्ट तो वेस्टर्न मीडिया की शुरुआत से सोच रही है. मतलब कुछ एग्जांपल्स मेरे जहन में आते हैं. अभी कोरोना हुआ था तो कोरोना की कैसे भारत की लाशों वाली तस्वीरें फ्रंट पेज पर सारी छापी गई थी. डिवाइडर इन चीफ छापा गया था. स्पेस एलीट क्लब को लेकर शायद NYT के फ्रंट पेज पर था, जिसमें भारत एक गाय के साथ बाहर खड़ा हुआ है, नॉक कर रहा है. स्पेस एलीट जब स्पेस मिशन को लेकर हुआ. 3 एग्जाम्पल्स. चौथा एग्जाम्पल्स अभी BBC की जो रिपोर्ट है. 4 एग्जाम्पल. रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान हमने देखा था कि जो रॉयटर्स या जो वेस्टर्न एजेंसी से जो परोसा जा रहा है वही यहाँ पर नैरेटिव बन रहा है कि रूस पिट गया और रूस का बहुत बुरा हाल है. सिर्फ एक ही नैरेटिव था और यूक्रेन बहुत भारी पड़ रहा है. मतलब मेरे ख्याल से जितने भी न्यूज़ चैनल्स थे, हम लोगों ने भी सभी ने रिपोर्ट किया कि रूस का बुरा हाल है, रूस पिट गया, रूस का बहुत बुरा हाल है. शुरुआत हुई तो लग रहा था कि यूक्रेन भारी मतलब वो आसान होगा रूस के लिए. लेकिन वेस्टर्न मीडिया जो परोसा जा रहा था वही हम. सोर्स क्या है भाई? सोर्स होता है एजेंसीज़ में. आप रॉयटर्स हैं,
अब रॉयटर से जो फीड आ रही है एजेंसीज में, अब वो स्लांट उसका उस तरफ है और वो स्लांट दिखता है, मतलब शुरुआत से लेकर अब तक वो स्लांट दिख रहा है। मेरा कंसर्न सिर्फ इस चीज़ को लेकर था कि हम लोगों का वो इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ, तो सवाल ये था कि इसको कैसे ओवरटेक करेंगे, क्यों नहीं है और कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? नहीं, रेक्टिफाई होना चाहिए, मतलब वो प्लेटफॉर्म तो अपना होना ही चाहिए। हम लोगों की डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा है ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर, कि वो जब कोई इस तरह का एक्सपेरिमेंट भी होता है या स्वदेशी कू भी था या कुछ उस तरह के ऐप्स थे भी, तो डिपेंडेंस मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा है। हम लोगों में से कितने ने शायद कू में अकाउंट बनाया होगा, बनाया भी होगा तो शुरुआत में बनाया होगा, लेकिन वापस सब लौट के ट्विटर पर ही आए होंगे। तो ये तो हम लोगों की भी प्रॉब्लम है, मतलब हम लोगों की भी ओवर डिपेंडेंस तो ट्विटर पर है ही, वो नरेटिव बिल्डिंग है ही। हम लोगों को लगता है कि हमने नरेटिव बना दिया ट्विटर पर, मगर अल्टीमेटली बॉसेस सारे इंडियन हैं, लेकिन सोच तो वो वेस्टर्न ही है और वो होना चाहिए। बिल्कुल। शेफाली जी, आई एम गोना थ्रो द सेम क्वेश्चन एट यू बिकॉज Padmaja ji and Aman ji are both prominent anchors. You are on the other side. You either appear as a guest or you commentate on the media. Hello. आपको क्या लगता है कि अब तक या नॉट जस्ट हम फेल हुए हैं, बट ऑल्सो जो हमारा अलेजेड दोस्त है रूस, आरटी भी हमारे खिलाफ बहुत ये करता था। पहले चैनल जो जिसने इंटरनेशनल चैनल जिसने शैला रशीद को इंटरव्यू किया था वो आरटी था। आपको याद होगा कि जनवरी में 222 में उन्होंने ये कोई डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस किया था कश्मीर पे, जिसको हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को बात करके फिर निकालना पड़ा। ऐसी क्या बात है कि हमारे दोस्त लोगों का भी चैनल हमारा खिलाफ करती है? एक भी इंटरनेशनल चैनल नहीं है जो हमारे बारे में अच्छी चीज़ें बोलता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई देश जो होता है वो आपके अल्ट्रुइज्म की वजह से या आप उसे अच्छे लगते हो इसलिए आपका दोस्त नहीं होता। वो उनका जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस होता है या उनके कंसिडरेशन होते हैं उस टाइम पे कि वो आपके दोस्त होंगे या नहीं। But Western media generally likes to see India in a negative light, and they will always try to point out only bad stories. और इस तरह के ridiculous bad stories वो pick up करते हैं। Obviously they track Indian news, और इंडिया में दिन में लाखों headlines churn होते रहते हैं in regional news, in national news. But what does the international media pick up? That is the key. There was this hilarious example of when in UP Yogi Adityanath became the chief minister for the first time, and he made a speech where he said that I will make the roads of UP potholes free. He said it in Hindi. So he said Gaddha Mukt banayenge. So Times of India made a story on it, and they translated Gaddha to Gadha, and they said that UP CM Yogi Adityanath promises to make the roads of UP donkey free. That was hilarious actually. A lot of other news outlets also picked up on that story. But what I'm trying to tell you is that everybody from Guardian to Independent to New York Times, they picked up on this one story. That day there were 10 different stories which were doing headlines in Indian news, but they picked out this one story and they added their little bit in saying that the cow-loving chief minister of UP promises to get rid of all the donkeys on the roads of UP. That was the slant. You can still search it and find it. So, वेस्टर्न मीडिया आपका दोस्त नहीं है, कभी भी ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा। दैट इज अ फैक्ट। सो दे विल ऑलवेज हैव दैट बायसेस। पर मेरा प्रश्न नॉन वेस्टर्न मीडिया के बारे में है। NHK जापान का, RT जो रूस का है, चाइना का तो मेरे को समझ में आता है, CGTV, अल जजीरा कतर जो टेक्निकली आपका दोस्त है, वो क्यों आपके बारे में यही करते हैं? क्योंकि लेफ्ट या राइट, फॉक्स न्यूज़ में भी आपने देखा था, टकर कार्लसन ने बोला था कि भाई देखो ये लोग सती करते थे, इसीलिए ब्रिटेन का इधर आके छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बनाना मुंबई में हिंदुस्तान के लिए सबसे अच्छी See, nobody likes a challenger, no? Nobody likes an upstart. Nobody likes a new power to emerge, basically. So obviously it is in your interest, and probably it is the colonial legacy that India is a land of snake charmers, of sati, of caste and whatever. So it's very easy to typecast. It's not very easy to accept that
India has changed and it is changing and it is demanding its share of the pie. So probably somewhere there is this difficulty to accept. I mean, I don't track international media, to be very honest, so I won't be able to answer this question, but I see a distinct anti-India bias in all foreign media. That is a fact. And that has always been there. It's not that it happened post-2014. It's always been there. Yeah, sure, of course. So here's the thing, why should we expect anyone to write good things about us? We have our own media here in India, and I think the great thing is that increasingly, at least I see a confidence in India, that you don't want anyone to say good things about you. Equally, you reserve the right, and you have the capability to call out when falsehoods are being peddled about you. The latest example, and I think the most relevant example, is India-Modi question. Now, you don't need to be Einstein. All you need to do is watch those 60 minutes, read the Supreme Court judgment on the 2002 Gujarat riots, and see how, it has been diced. There are some things which have been amplified, some things which are mentioned in passing, some things that are just, thrown in the end as incidental, but it is so clear, like it is mind-boggling. But that is what we should be doing. Instead of saying कि वो हमारे बारे में ऐसा क्यों नहीं बोल रहा, we can turn around and say जो तुम हमारे बारे में बोल रहे हो वो बकवास है, और हम उसको with facts, not saying कि हाय हाय हम लुट गए, ऐसा हमारे बारे में क्यों बोल दिया, we are so sad. You have an equally strong and powerful voice, whether in mainstream media, whether in social media, you call them out. The smallest example in this documentary, I think barely 5 minutes into it, the 2002 clip that is used of the lady journalist, the first shot is of two men standing in front of a burning building, and it says, when I walked into Ahmedabad, the main square, I saw two Hindu men who were standing in front of their travel agency that had been burnt. Cut to the voiceover which says, and most of the Muslim areas were targeted. You literally had the first shot where a Hindu man's shop was burnt. And then they go on to call it an ethnic cleansing. You just started by showing me कि वहाँ पे भाई हिंदुओं की दुकानें जल रही थी, तो ethnic cleansing कैसे है? But which is why we are here. That you watch it and you say कि आप बकवास कर रहे हो. अगर उसमें 100 राइटर्स को मारा गया है, अगर पुलिस ने 17,000 टीयर गैस शेल्स फेंकी हैं, तो there is no reason for you to sit there and say that I had a man who was traveling with me, who was my local contact, who spoke to some unnamed anonymous source, who spoke to somebody else, who said that the writers were given a free run. Arey bhai, the facts say that 100 writers were shot dead, that 50% of them were Hindus. How can you say कि वहाँ पे writers were given a free run? And that is why you're here, to put out the facts. Point number one. Point number two, other than the bias, here is a practical difficulty that happens. For anyone who's worked in the media, when foreign journalists come, irrespective of their nationality, and you would know this, they have interlocutors in India. Those interlocutors are very specific. Now, the same group of people who you might think as, the lobby or the Khan market gang, so-called, that is the network, whether you like it, whether you don't like it. Now, foreign media, Western media, because of constraints of language, they can only speak to English-speaking people. So who are those interlocutors? Who are the people who are telling you कि भारत में क्या चल रहा है? They have a very specific view. They are the same people who will say, Supreme Court ने भले से ही clean chit दे दी होगी, but दंगे तो मोदी नहीं करवाए. I'm telling you. It is that person. He is your only source. Then that and Western media, they call them fixer. Whenever English-speaking media comes here for whatever, they are called fixers / stringers, or producers, field producers. Then, if you're doing a long documentary, they will get you talking heads. Who will be those talking heads? Talking heads who agree with them, who are their friends, who will say the same things that he wants you to hear. So, while, maybe there is a bias, or, there is a confirmation bias, there is a perception, or what has been called colonial hangover, but there is also a very real difficulty. So, यहाँ पे आपके, the smallest thing, when we keep talking this Islamophobia, I was talking to somebody recently, and nobody knows this.
in Varanasi, when this pashmina shawls, right? Pashmina shawls are huge. They are so expensive. Everyone buys them. People make millions. Private companies. In Ladakh, because the pashmina weaving wasn't happening, वहाँ पे technology और अच्छे looms नहीं थे. So what did the government do? The Khadi Gram Udyog, in the corporation, they got the pashmina wool, bought it from the people who cultivated there, brought it to Varanasi. And in Varanasi, pashmina shawls are being woven. Who are those weavers? They are all Muslims. Muslims in Varanasi are weaving pashmina shawls, which is the pride of India, and it is being sold in Khadi Bhavan. But what is this Islamophobia we are talking about? Why is the government giving good? And by the way, ये तो those न्यूयॉर्क टाइम्स में भी किसी ने लिखा था ना कि the increasing focus on textiles and saris means it's a attempt at kicking Muslims out of weaving and this and that. New York Times में बहुत बड़ा and India which is Inc. में- why we need to sit here and tell these stories and call out the bullshit, pardon my language. Right. That you can sit there and say कि हाँ भाई इस्लामोफोबिया है, but ये जो पश्मीना शॉल वीवर्स बनाते हैं, अगर से एक सिल्क साड़ी बनाने वाले वीवर को, and I'm just saying this, I can't rattle off the figures off the top of my head, but अगर साड़ी बनाने वाले वीवर को 1000 रुपए मिलता है पर साड़ी, वो पश्मीना शॉल बनाने वाले वीवर को 5000 रुपए मिलता है, and they are all Muslims. So that is my two bit to how your responsibility in shaping the narrative about your country is that you don't need to be dependent on or worry about what the Western media is saying. Fair point. Okay, I'll just add to it. Kushal. To a Let's- great, let's- yeah, let's no, move on. just give me 20 seconds maybe. I'll borrow the phrase from Anand. The point is, India has also moved on, okay? We don't see ourselves through what a New York Times writes or what an economist writes. If that was true, then in 2019, Modi would have never come back to power. Absolutely. India thinks So- differently, and we don't really care. Okay, let them do their Udali act, but what difference does it So make? the point I wanted to make here for you, Kushal, to segue you in, is, here's the fact. Aman is one of the most watched anchors in Hindi. Yeah. Padmaja in English, and I can tell you the English figures are what? Between Republic and Times now, it's 80% of the market cumulatively. तो अगर हम इतना सेल्फ कॉन्फिडेंट देश हैं कि 80% ऑफ आवर पॉपुलेशन विदेशी कचरा नहीं देखना चाहता है, वो स्वदेशी माल देखना चाहता है, तो वो बाकी 20% का ही ओपिनियन क्यों इतना फॉरेन में फैलता है? तो मैं वो And to ask you the same question I asked Aman Yeah, as well. so I'm going to give the uncomfortable answer here because we're mediocre. Yeah, it's okay. I'll get brickbats. So be it. I mean, I don't care. We are mediocre. We don't believe in institution building. हम लोगों को कोई संस्था बनाना में शौक नहीं है. हम से अभी कैसा हो गया है कि I've been one of the, I mean, you know it, Abhijit. I don't read New York Times. I mean, at least I don't pay whenever I read them. I find my ways out. All of you do not pay. Well, pay Indians, not those other. The point is, you can look at the history, right? Now, I know we're talking about 2047, but this is classic intellectual isolationism. वो मेरी सुनता नहीं है तो मैं भी उसको नहीं सुनूंगा. This is intellectual isolationism. And अरे पर हिंदुस्तानी तो बहुत सुनते हैं. मैं जब भी मैं ट्विटर में जाता हूँ वो लोग BBC NYT की ही नहीं मगर पद्मजा ने ये जो कर- पॉइंट शेयर करके बोला गाली है देते हैं. वो राइट है ना, क्योंकि जो साल्वाटोर का भी क्या पॉइंट था, जब साल्वाटोर ने क्या कहा कि अगर आप एक स्ट्रॉ पोल लोगे इंडियन इन्फॉर्मेंट्स का, in who basically answer, they all lean in one direction. अच्छा लेफ्ट में भी वैरायटी होती है मगर जो इंडिया इन्फॉर्मेंट्स है उसमें वो वैरायटी भी नहीं है. तो मतलब हाउ द हेल डिल वी मैनेज टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ the fault lies with us, not with them. This is like, why does Pakistan not love me? अरे they are not meant to love you. they are going to do their thing. वो अपना काम करने वाला है, तुम क्या कर रहे हो? और हमारे यहाँ पे एक क्या हो गया है कि अगेन शुड यू एस्पायर, आपको नंबर 1 होना, ये एस्पायर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए,
मगर वो होने के लिए जो चीज़ें करनी होती है वो भी तो करनी चाहिए ना. हम वो करते नहीं हैं और फिर हम विश्व गुरु सिंड्रोम ऑन स्टेरॉइड्स पे रहते हैं और उसके बाद हम बोलते हैं हाय कोई हमारी सुनता नहीं है. क्यों नहीं सुनता? डू वी हैव वर्ल्ड क्लास एंकर्स? येस वी डू. I personally feel some of the news reportage in India, some of the journalists in India, I personally feel वो number one है, and this is not, I consume foreign news too, but I think they are far superior even in English language. हिंदी में तो हम है ही अच्छे, मगर हम अंग्रेजी भाषा में भी काफ़ी इंटरनेशनल रिपोर्टर्स से अच्छे हैं. मगर पॉइंट है कि हम आइसोलेशनिस्ट हैं क्योंकि हमें एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है. और अगर कोई उसको पॉइंट कर देता है, आज मैं अभिजीत की आत्मा मुझ में आ गई ऐसा लग रहा है तो अगर वो कोई पॉइंट कर देता है तो हमको चुभता है. और क्यों वो उस इंटेलेक्चुअल के पास जाते हैं? आपने उसको कोई ऑप्शन क्यों नहीं दी? ये भी कोई पूछ रहा है कि नहीं कि अगर वो आता है और वो एक एजेंसी है, चलो लेट्स सी देयर इज एन एजेंसी, आई एम नॉट सेइंग देयर इज वन, लेट्स से कोई एजेंसी है जो मीडिया वेस्ट से आती है या नॉन वेस्टर्न कंट्री से आती है, उनके ये होते हैं जैसे आपने कहा फिक्सर्स, या दैट इज द वर्ड दे यूज, फिक्सर्स. So why is there no parallel agency that says, hey, there are new fixers in town? Why don't you go and talk to them? We don't do that. The fixers, we don't want to create fixers. We want to whine. Whining ain't going to change anything. बिल्कुल. और अब तक हमने प्रेजेंट की बात की है, बट द टॉपिक इज ऑलवेज भारत 2047. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सेगवे ऑन समथिंग दैट शेफाली हैड इंडिकेटेड. ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा जो न्यूज़ एक्सेस किया जाता है हिंदुस्तान में वो मोबाइल फ़ोन से है, नॉट ऑन टीवी एनी मोर. एंड इसमें भी एक सॉर्ट ऑफ शॉर्ट फॉर्म का मार्केट ज़्यादा है लॉन्ग फॉर्म से. तो जैसे मैं सबको थोड़ा क्रिस्टल बॉल गेजिंग, यू डोंट हैव टू बी वेरी एकेडमिक अबाउट दिस, थोड़ा क्रिस्टल बॉल गेजिंग करके 2047 में आप क्या देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट कैसे चेंज हो रहा है? और ये शॉर्ट्स का जो मार्केट है, यानी कि ट्विटर क्यों पॉपुलर हुआ? क्योंकि समथिंग कॉम्प्लेक्स 140 कैरेक्टर्स में बना दिया जा सकता है. वैसे भी न्यूज़ को अगर एक 30 मिनट प्रोग्राम को 2 मिनट में इनकैप्सुलेट किया जा सकता है. दिस इज़ वन ऑफ द ट्रेंड्स दैट आई सी. आप क्या ट्रेंड्स देख रहे हैं? जस्ट वन ट्रेंड पर पर्सन विच यू थिंक इज गोइंग टू पिक अप ऑन द पाथ टू 2047. I think the number one trend is going to be what we just discussed a second ago, that Indian viewer is going to be very clear of what she wants and not look for validation elsewhere. Within India, I think now we are fairly confident कि हम क्या हैं, हमें किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई आके बता नहीं सकता कि तुम you are like a dirty unwashed lot. Now I need to know, I know I am a good, strong, emerging country. Now I need to know what next. So now the Indian viewer will increasingly look towards the media to say कि अच्छा ठीक है, अभी जो हमारी problems हैं इनका solution क्या है? मेरे को जो बताया जा रहा है कि I am basically screwed, क्या ये सच है? सब मुझे बता रहे हैं हमारा जो इंटरनल पॉलिटिकल डायलॉग है वो ये है कि अब हम एकदम एक मुस्लिम हेटिंग, डेप्थ्स ऑफ बिगेटरी, ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, हम ये सब बन चुके हैं. चाइना कल आकर के दिल्ली में लाल किले पे खड़ा हो जाएगा. ये सब मुझे बताया जा रहा है कि होने वाला है. क्या ये होने वाला है? नाउ दे आर लुकिंग फॉर आंसर्स टू दीज प्रॉब्लम्स. And I think increasingly they are going to turn to the medium which gives them those answers. Perfect. Aman ji, what's your prediction? अभिजीत, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले अभी जो कुशल ने एक चीज़ का जिक्र किया था, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक शेयर करता हूँ. उन्होंने कहा कि नरेटिव और एजेंडा में क्या फ़र्क होता है. बस 1 मिनट में फिर मैं आपके जवाब पर आऊँगा. मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. हम लोग एक एडिटोरियल मीट कर रहे थे एक बार. हम लोग सुबह जब शो करते हैं तो जैसा पद्मजा ने कहा कि उसके लिए पूरी पीएचडी करनी पड़ती है. हम लोग सुबह से बैठ जाते हैं, सारी खबरें स्कैन करते हैं. तो एक खबर आई, लखीमपुर में एक बच्ची का रेप हुआ
मैं सिर्फ ये फ़र्क समझा रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एजेंडा और नरेटिव के बीच। लखीमपुर में एक बच्ची का रेप हुआ, तो हमने देखा राहुल गांधी का ट्वीट आ गया, सोनिया गांधी का ट्वीट आ गया, कांग्रेस इधर से हर जगह ट्वीट। मैं कहा बहुत बड़ी खबर है, मैं कहा बच्ची का मामला है, बहुत बड़ी खबर है भाई, रेप है। तो हमने एडिटोरियल मीट में तय किया इस खबर को ओपन करेंगे हम, बड़ी खबर है ये। तो बहुत ज़्यादा शोर था, बहुत ज़्यादा था, तो हमको पहले समझ आया कि मामला तो यूपी से ही होगा। पहले तो ये क्लियर हो गया वो यूपी से ही था। तो 11 बजे 12 बजे, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ, 1 बजा, हमने तय कर लिया सारे मीडिया में, क्रॉस मीडिया, ये खबर सबसे बड़ी खबर थी लखीमपुर में बच्ची के साथ जो रेप हुआ। प्रॉब्लम ये हो गई, दोपहर को शायद 2 बजे के आसपास यूपी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोपियों के नाम बता दिए। सब खत्म। अब मैं माइनॉरिटी में था रात को, मैं रात को शो कर रहा हूं, मैंने कहा पता नहीं शायद ट्वीट डिलीट हो गए होंगे सबके, या जो गाड़ियां निकल गई थी वो वापस आ गई होंगी हाथरस बनाने की। मतलब मैंने जो शुरुआत में एग्जाम्पल दिया ना कि जो बताना है उससे ज़्यादा ज़रूरी ये हो गया क्या छुपाना है, क्या नहीं बताना है। मतलब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, हमेशा ना हमें एक नैरेटिव ऐसा खड़ा कर दिया गया है, माइनॉरिटी खतरे में, माइनॉरिटी खतरे में, इस्लामोफोबिया, जो इस अभी पद्मजा ने कहा। मैं आज जब आ रहा था तो थोड़ी रिसर्च कर रहा था, तो मैंने एक चीज़ पढ़ी, हम एक एग्जाम्पल है, मैं हर जगह कोट करता हूँ, मैं यहाँ पर भी करूँगा। 71 की 71 की लड़ाई में हमारे यहाँ माइनॉरिटी खतरे में है, यही है ना सबसे बड़ा नैरेटिव। 71 की लड़ाई में सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल, पारसी, ईस्टर्न कमांड को जो हेड कर रहे थे वो JFR जेकब, यहूदी, जगजीत सिंह अरोड़ा, सिख। ये तीनों क्या है? तीनों माइनॉरिटी हैं, और तीनों माइनॉरिटी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो ये माइनॉरिटी की, हमारे यहाँ माइनॉरिटीज नहीं, एक माइनॉरिटी के बेसिस पर मुल्क के 2 टुकड़े किए थे। ऐसे इतने नरेटिव हैं। एजेंडा और नरेटिव के बीच की ये जो महीन लाइन है ना, वो यही है मेरी नज़र में, क्या नहीं बताना है, ये कहीं पता ना लग जाए। सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि ये पता ना लग जाए, कश्मीर फाइल्स आ कैसे गई, मोपला नरसंहार पता ना लग जाए। हम लोग क्या करते हैं, जो अभी पद्मजा ने कहा कि हम फैक्ट्स को रिपोर्ट तो करेंगे भाई, बताएंगे तो सही, हम बताएंगे नहीं, फिर अगर बता दिया तो आप पर एक ब्रांडिंग हो जाएगी कि आप जो है गोदी हैं। मैं आज याद करना चाहूंगा, मैं बहुत पसंद करता था उनको, पर जो भारत जोड़ो यात्रा में मार्च करते हैं राहुल गांधी के साथ, वो गोदी नहीं है। नहीं वो नहीं है, वो तो राहुल जी की किस्मत खुल गई, उनके साथ वॉक कर लिया। वो आशीर्वादी हैं, आप गोदी हैं, ऐसे होता है। अरे उनको जॉब से बाहर करने के लिए तो अदानी ने इतने पैसे खर्च करके एक चैनल खरीद ली थी ऑब्वियसली। देखिए सॉरी एक सेकंड, yeah. बैक टू अमन, आपका प्रेडिक्शन आपने बताया नहीं, व्हाट डायरेक्शन? मेरी नज़र में अभी भी वो है, मैं जो शुरुआत में कहा था, एजेंडा ड्रिवन या नरेटिव ड्रिवन से ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा आने वाले टाइम में। जो विजुअल मीडिया है, जो अभी हम मेटावर्स जो हम देख रहे हैं, मतलब VR AR, मतलब हमारी शायद भूमिका खत्म बहुत कम हो जाएगी। हम जितने प्रासंगिक उतने प्रासंगिक होंगे, हम जितना टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे संभवतः। मतलब वो जैसे कहते हैं, हम लोग अभी VR आंखों में लगाकर वहाँ स्पॉट पर लोग वहाँ स्पॉट पे पहुँचते हैं। आने वाले टाइम में शायद लाइव रिपोर्टिंग वैसी होगी, लोगों को वो भी उस तरह की रिपोर्टिंग होगी। अगर आपको कश्मीर में 100 साल बाद 2047 में जाकर देखना क्या हुआ था, तो वो VR के जरिए यू विल बी देयर। जैसे वो संजय ने महाभारत कुरुक्षेत्र की लड़ाई कैसे हुई थी वो बताया था, तो वो वैसे होगा मेरे ख्याल से। आप वहाँ पहुँचेंगे और उस चीज़ को महसूस करेंगे। फ्यूचर बहुत टेक्नोलॉजी वाला है, जो अभी जिसका जिक्र किया कौशल ने, हमको बहुत टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना होगा। वो कर पाए तो हम प्रासंगिक हैं, नहीं कर पाए तो मुश्किल है।
मुझे सबसे बड़ा ट्रेंड ये लगता है आने वाले सालों में विजुअल मीडिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय भाषाओं की तरफ मुड़ेंगे, जिसके बारे में अभी तक ज़्यादा बात नहीं हुई। अभी भी अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदी में टीवी देखने वाले, न्यूज़ देखने वाले लोग अंग्रेज़ी में न्यूज़ देखने वालों से कई ज़्यादा हैं, और हर भाषा में हाइपर लोकल कंटेंट बहुत पॉपुलर हो रहा है। जैसे यूट्यूब चैनल में कोई सिर्फ सूरत की बात करेगा, कोई सिर्फ वडोदरा की बात करेगा, कोई सिर्फ सूरत के एक छोटे से कस्बे की बात करेगा। तो ये जो हाइपर लोकल कंटेंट और लोकल भारतीय भाषाओं में कंटेंट वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और उसके आसार आपको अभी भी दिख रहे हैं। इसीलिए तो बीबीसी मराठी में भी है, बीबीसी बंगाली में भी है, बीबीसी जब इंडिया में आ रहा है तो भारतीय भाषाओं में भी आ रहा है। तो भारतीय भाषा इज़ आई थिंक गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन द फ्यूचर ऑफ विजुअल मीडिया, इंक्लूडिंग हिंदी एज वेल एज ऑल अदर इंडियन लैंग्वेजेस। लवली। नहीं, मैं वो अभिजीत ने सवाल पूछा था, मैंने उस जवाब दिया था। नहीं, वो अभिजीत का सवाल था। Excuse me, I'm conducting the session. जी, Thank you. I'm so sorry. Kushal, your prediction. Thank you. By 2047, I see a hybrid model. A lot of people think mainstream media is going to be dead or something. I don't agree with that analysis. I think it's illogical. You need the level of investment जो लगती है, आप उसको अगर टेक्नोलॉजिकली चेंज भी कर दो। बीच में मैंने किसी को सुना था, बोलते हैं हम न्यूज़ है ना अभी ऊबर के जैसे होगा, लोकल बंदा होगा वो बस अपने मोबाइल फ़ोन से लेगा, स्ट्रीम कितना करेगा, 5G भी आ गया चलो स्ट्रीम भी कर लेगा, एडिटोरियलाइज कैसे होगा, कुछ भी हो जाए। जैसे अभी अमन ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, जो ये खबर आई थी लखीमपुर की। इवेंचुअली डिसीजन क्या था, वो एक एडिटोरियल डिसीजन था कि क्या करना है क्या नहीं करना। आप अगर ऊबरिफिकेशन कर दोगे न्यूज़ की तो एडिटर ही नहीं होएगा, एडिटर नहीं होगा तो क्वालिटी ड्रॉप नहीं होगी। तो फिर ठीक है, हम न्यूज़ को भी अभी वैसे ही हम न्यूज़ को भी ढिच्चैक पूजा ही बना रहे हैं, तो हम कितना और बनाएंगे मुझे वो देखना है। तो मेरे हिसाब से 2047 में मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा रहेगा। लोग ये भूल जाते हैं, मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, मगर सोशल मीडिया को एक आदत हो गई है, वो समझते हैं कि वो न्यूज़ क्रिएट करने नहीं, वो सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। वो they react to what the media says. You remove the media, they don't know what to react to. बीच में अगर इतनी हालत ख़राब थी, हम लोग वो मतलब अभी जिसने शौच किया था प्लेन में, हालत हमारी ये थी कि कोई मोदी जी न्यूज़ नहीं दे रहे थे तो हम उस आदमी के पीछे पड़ गए थे, क्योंकि भाई ठंडा था मौसम, क्या करें, अभी 3 दिन कुछ नहीं करना था तो हम वही कर रहे थे बैठ के। तो हम ट्विटर पे यही हो रहा था। तो लेट्स गेट रियल, हाइब्रिड मॉडल होगा। हाँ, शायद आप टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट्स की वजह से आप कुछ चीज़ें चेंज कर लोगे। आज में भी यूट्यूब है, यूजुअली टेक हिस्ट्री ये दिखाती है कि हर 25-30 सालों में टेक प्लेटफॉर्म्स चेंज हो जाते हैं, तो यूट्यूब की जगह कुछ और आ जाएगा। एज फार एज यू हैड रेज्ड द पॉइंट ऑन 60 सेकेंड videos, right? The consumption of content in the short form. Short form is a phase right now. I don't know how long it will last, because while I was just looking at the numbers, book sales have not gone down. So podcasts are growing. So basically platforms and mediums will change, Yeah. but there's no chance of Aman and Padmaja being laid off. So basically that means Aman and Padmaja should give us party. ओके, एक्सीलेंट। तो सब अमन जी और पद्मजा जी हमारे लिए पार्टी होस्ट करेंगे, ज़रूर आना, सबका फोकट मिलेगा। अब हम सबको फोकट का खाना सब कुछ मिलेगा, आ जाइए, हमको होस्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है, तो आनंद आप हर जगह क्वेश्चन पूछते हैं, हाथ नीचे नहीं, रखिए। सबसे पहले आनंद ही पूछेगा। नहीं, हमेशा 30 seconds मिलता है, मैं नहीं दूंगा 30 You know, seconds। before we do the question answer, one thing I want to add to what Shefali also said. Absolutely, language, Indian languages will more assert themselves more. Also, Indian content. Like a lot of times, you know, earlier, especially जो हमारी English language media है, उसमें था कि भाई English language media should cater to English sensibilities. That change has come, that English speaking people don't necessarily have Western sensibilities. We have owned English. And हम English में अब अपनी स्टोरी और अपना कंटेंट देंगे। सो आई थिंक यू नो, पहले जो परसेप्शन था कि अगर राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है, दैट्स अ हिंदी स्टोरी। नो, इट्स नॉट। इंग्लिश स्पीकिंग पीपल भी तो दे गो टू मंदिर। क्या मेरे घर में मंदिर नहीं है?
मैं क्यों ना राम मंदिर का अगर भूमि पूजन हो रहा है वो स्टोरी मैं क्यों ना चलाऊं? जो मेरा व्यूअर है वो भी उस राम मंदिर में जाएगा, उसके लिए वो उतनी ही प्रासंगिक है. सो दैट द issues that we pick up also largely will change. Lovely. हाँ जी. So question and answer, sir. चालू है. अच्छा. Number one is you are right. We were talking of minorities, but please make it clear, because one of the generals who won the war for us was a minority, J.F.R. Jacob, and that is only 5,000 number community, which is never taken into account. Parsis are also minorities. So it is basically a particular community which is in Khatra versus the all rest of us. So that narrative has to be changed very clearly. And second point, what Kushal said about Olafication of Uberization, whatever I use Ola, sorry. The problem could be if there is no editorial content, the issues will be felt by the courts of the country more than anything else, because without verification, unfounded news, litigation, defamation, etc., could simply jump up. So that is the reason, as a last check post, Are you a lawyer? Yes, I am trained to be a lawyer, and I am concerned about it. I am working on mediation. Question. Yes. So that is what I wanted to submit. So what do you type of, if this type of thing, what do you have, how to, in social media, what could be the possible succor where you will have to cover up this litigation or docket explosion, as the judges call it? Thank you. मेरी एक I'm going to try in Hindi again. मेरी एक विनती है उपस्थित सज्जनों से, वो केवल प्रश्न करें ताकि सबसे, क्योंकि बहुत सारे हाथ उठे हैं, तो अगर आप टिप्पणी करना चाहते हैं इनसे साइड में जो ये पार्टी दे रहे हैं अमन जी और पद्मजा जी, उनके पार्टी में जाके उनको टिप्पणी करें, पर इधर के लिए प्रश्न पूछें. अब सुनिए, इस साइड के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, किसी ने भी इस साइड को पूछा नहीं है, तो वो जो सज्जन खड़े हुए हैं उनको दीजिए माइक ज़रा. ये राइट पे हैं और हम राइट के खिलाफ ही डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं. They are on the right side. एक सेकंड. हेलो, आवाज़ आ रही है? ओके सर, अभी आपने जो बोला कि फाइजर वाला जो स्टोरी है उसको रेबल न्यूज़ ने डावोस में किया था, तो आपकी चैनल को किसने रोका ऐसे जो फाइजर का जो सीईओ है उसको ऐसे रोड पे क्वेश्चन पूछने से? अभी आप बोल रहे हो ना कि आपको मतलब क्या बताना है, उससे ज़्यादा क्या छुपाना है, उसके बारे में बोला जा रहा है, तो आपको कौन बोल रहा है कि क्या नहीं बताना है? ये क्वेश्चन है. वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू. आवाज आ रही? Excuse me, please don't hand out the mics. I'll tell you who to hand over the mics to. पहले Thank हम you. जवाब तो सुन ले. भाई मैं तो दावोस जाता तो ज़रूर पहुंचता यार, मैं गया नहीं था, नंबर एक. नंबर दो, जब ये खबर आई थी तो ये खबर मैंने सबसे पहले उठाई थी, ये शो में मैंने इसको रखा था. सारे जो नरेटिव कह लीजिए या जो स्टोरी थी उसको मैंने अपनी तरफ से दिखाया था कि कैसे फाइजर की लॉबिंग इंडिया में की गई थी, मेड इन इंडिया वैक्सीन के खिलाफ किस तरह के स्टेटमेंट्स थे. जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मैंने, मतलब इस खबर को दबाया नहीं था, मैंने दिखाया था. मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मैंने पूरी की थी. Just a minute. Sir, I'm going to give an opportunity to the back. I'm requesting the volunteers, please don't hand over the mics till I tell you to hand them over. Can we please give the mic to the gentleman sitting next to you in the check shirt? Thank you. First of all, मैं यहाँ पे करेक्शन करना चाहूँगा. ये सभी जो स्पीकर्स है वो कह रहे हैं कि वेस्टर्न मीडिया जो है वो इंडिया के बारे में सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव दिखाता है. कब, लेकिन जब वो पॉजिटिव चीज़ें दिखाता है तो आप लोग ध्यान ही नहीं देते. जब दिल्ली मॉडल की तारीफ की थी, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछिए. मैं पहले करेक्ट करूंगा, उसके बाद क्वेश्चन पूछूंगा. नहीं, प्लीज क्वेश्चन पूछिए. बहुत सारे लोग हाथ उठे हैं, जल्दी. क्वेश्चन एक ही है मेरा कि क्यों गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया ही नहीं जा रहा है. जो भी मीडिया है वो हर बार गवर्नमेंट के सपोर्ट में, या गवर्नमेंट से जब क्वेश्चन पूछने की बात आती है मोदी के इंटरव्यू में, तो क्या पूछेंगे
कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, मैंगो। आप इतना काम करते हैं तो थक क्यों नहीं जाते? ये क्या क्वेश्चंस है? और जीडीपी जब गिर रही है, कोविड के टाइम पे जीडीपी जब गिर रही थी, तब किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया कि ये जीडीपी गिर रही है तो क्यों कोई सवाल नहीं उठा रहा है। और सब लोग कह रहे कि इंडिया 2047 तक $26 ट्रिलियन इकोनॉमी पर चला जाए, ठीक है? तो हमें बताइए कि पर कैपिटा इनकम में जो लोअर ग्रुप इनकम है वो कितनी ऊपर आएगी, क्योंकि $26 ट्रिलियन तक चला जाएगा तो वो जो सिर्फ अमीर अमीर लोग हैं ना, अडानी अंबानी, उनकी नेटवर्थ बढ़ जाएगी और वो तो इंडिया ये डेवलपमेंट है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो क्वेश्चन ये है कि जब भी कोई मोदी से इंटरव्यू करते हैं, क्यों ऐसे सॉफ्ट बॉल क्वेश्चंस ही पूछते हैं? एंड आई एम जस्ट caveating योर आंसर्स। आप ये नहीं बोलेंगे कि आपने देखा है कि सोनिया के साथ क्या इंटरव्यू हुआ था और राहुल के साथ क्या इंटरव्यू हुआ था। दैट इज नॉट एन आंसर, दैट इज वॉट अबाउटरी। Why do people give a soft ball to Modi? That's your question, right? And that is exactly the answer you did not want about Rahul and Sonia, correct? Yes, thank you. Okay, now. Because we are an authoritarian society and we know what the government will do to us if we don't toe the line. Okay. I only Does any- speak on my behalf. I am not speaking on their behalf. I just does want to anybody on the clarify panel that. want to disagree with that in any way? नहीं नहीं, पॉलिटिकल होने से कोई ये है क्या कि पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता? तो बोल For the record, I am a BJP voter. अगर किसी को clarification चाहिए. I don't agree with Kushal on this. I don't think that we are such an authoritarian country that asking Modi any question, you know what the government will do to you. On social media, people are asking, even on print media and news media, people are asking questions every day. So I don't think that is true. Please don't interfere. Please, no. You've asked the question. I framed your question correctly. You will not interrupt them. भाई मुझे मौका नहीं मिला अभी तक, मौका मिलेगा ना तो ना पास्ता पूछूंगा ना मैं ये पूछूंगा आम, मतलब मैं नहीं पूछूंगा। ठीक है। मैं अपनी बात कर सकता हूँ। सी जो आप बाय द वे आपने जो मैंगो का एग्जाम्पल दिया ना, वो अक्षय कुमार ने पूछा था, जो कि पत्रकार नहीं है। इट वॉज मेंट टू बी। जवाब सुनो भाई, जवाब सुनो। सो पहली बात, इट वॉज मेंट टू बी अ सर्टन काइंड ऑफ इंटरव्यू जो अक्षय कुमार ने किया था। इट वॉज मेंट टू बी अ पर्सनल इंटरव्यू। ऑल्सो आपने वो पूरा इंटरव्यू देखा नहीं भाई। कई बार ना आप लोग भी जब छोटी छोटी क्लिप्स देख करके, किसी यूट्यूब चैनल को देख करके आप ओपिनियन बना लेते हो। वो सवाल क्या अक्षय कुमार ने पूछा था? देखा आपने इंटरव्यू पूरा? बताइए, देखा आपने पूरा इंटरव्यू? किसने पूछा वो सवाल? He asked? No, he didn't ask. He says कि मैं आज सुबह जब आ रहा था तो मैं एक आदमी से बात कर रहा था। मेरे आई थिंक उनके घर पे जो काम करती हैं लेडी, उनको मैंने बताया मैं मोदी जी से मिलने जा रहा हूँ। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी कि लोग के दिमाग में क्या क्या उत्सुकता होती है। जब मैंने अपनी दीदी से पूछा कि मैंने उनको बताया कि मैं मोदी जी से मिलने जा रहा हूँ, तो उनके दिमाग में कुछ अलग ही सवाल आया। वो तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मोदी जी से ये पूछिएगा कि वो आम कैसे खाते हैं। एंड देन दे बोथ लाफ्ड अबाउट इट। सो इट वॉज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ द इंटरव्यू, इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ सम बैंटर। दैट बीइंग सेड, जब भी आप कोई ओपिनियन बनाते हो ना, पूरी चीज देखा करो। आपने ये नहीं बताया कि जब फार्म लॉज आई थी, news channels, and I will not, and I also cannot speak on behalf of everyone, but every journalist has the responsibility in their own mind, which I said in the beginning, कि आप ये सोचिए कि आपकी विचारधारा क्या है, आप क्या चाहते हो, आपको क्या सही लगता है, and then approach each issue with that in mind. जब फार्म लॉज लाई गई, हमने कहा कि ये फार्म लॉज सही है, नॉट बेस्ड ऑन बिकॉज सरकार लाई है। कांग्रेस लाती बहुत अच्छा होता, उनको भी तालियां। बीजेपी लेके आई, वेरी गुड। बट गो इनटू द डेप्थ। आप अगर उन लॉज को पढ़ेंगे, आई कैन चैलेंज यू कि 99% ऑफ द पीपल हु वर सिटिंग एंड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दोज लॉज hadn't even read one page of those laws, hadn't even gone and asked anyone, hadn't even hit the streets and spoken to actual farmers. आप मंडी में गए हो क्या?
कभी आपने देखा है मंडियां कैसे चलती हैं अभी? आप जाओ, आप देखो कि फार्म लॉज में, आप मंडी छोड़ो, आप सिंगू बॉर्डर गए, आपने देखा वहां पे कितने किसान थे? आप पूरी बात सुनो भाई। जब प्रश्न आप पूछ लिया जाओगे, ना, अब जवाब सुनो। जब आप लॉज को पढ़ोगे, बेस्ड ऑन रीडिंग द लॉज, बेस्ड ऑन स्पीकिंग टू द पीपल हु वुड बी अफेक्टेड बाय द लॉज, आप जाकर के देखिए कि एमएसपी, जो आप कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, एमएसपी विच एक्चुअली अ लॉट ऑफ पीपल डिसएग्रीड विद दिस गवर्नमेंट, सेइंग कि आप एमएसपी बार बार क्यों बढ़ाए जा रहे हो, दिस इज नॉट फिस्कली वेरी साउंड। जिस गवर्नमेंट को किसान विरोधी बताया जा रहा है, वो एमएसपी, ना सिर्फ एमएसपी बढ़ाया, उसने प्रोक्योरमेंट बढ़ाया। वो छोड़िए, जब ये लॉज को वापस लिया गया, कितने लोग जिनको सो कॉल्ड गोदी मीडिया कहा जाता है, उन्होंने ही अपोज किया। क्यों? क्योंकि इन प्रिंसिपल द लॉज वर गुड, बट देन नोबडी सेड कि अरे अब तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन, ये तो ऑकवर्ड हो गया, अब तो आपको गोदी मीडिया होना था, आपको तो उस बॉक्स में डाल दिया गया, बट आप क्यों सरकार से सवाल पूछ रहे हो? तो कहा गया हा हा हा, देखो गोदी मीडिया की तो भद पिट गई, ये अब इनको अपोज करना पड़ रहा है। तब आपने क्यों नहीं देखा कि वही चैनल जिनको आप गोदी मीडिया कह रहे हो, वही सबसे पहले सवाल पूछ रहे थे कि आप भीड़ तंत्र के सामने क्यों झुक गए, क्यों आपने ये लॉज को रोल बैक कर दिया? इन द केस ऑफ मोरबी, इन द केस ऑफ बिल्किस बानो, दोस क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, बट बिकॉज आपको अपने दिमाग में आपने वो बना लिया है, तो आप कोई चीज देखना नहीं चाहते। इसको कहते हैं परसेप्शन बायस। इससे निकलिए। Fantastic. Just a public service announcement. No Anurag, no Anand. The first two rows are VIP rows. VIPs do not get to ask questions. The audience is the VIP. उपस्थित सज्जनों, तो एक और Abhijit ji is doing the wonderful moderator role today. एक सेकंड, ये हमारी लेडी है इधर आपके। हेलो टू एवरीवन, माय क्वेश्चन इज दैट आजकल हम देखते हैं कि मीडिया में न्यूज़ देखकर लोगों को कोई ओपिनियन बनाने का चांस नहीं मिलता है। न्यूज़ में मोस्टली माहौल क्रिएट किया जा रहा है, और पहले जैसा दूरदर्शन में होता था ना कि शांति से आके आप अपने न्यूज़ पढ़ के जाओ, आजकल आप कोई भी न्यूज़ चैनल खोलते हो ना, सिर्फ चिल्लाते हैं और एक ही लाइन 17 बार बोलते हैं कि यूथ को न्यूज़ देखने का मन ही नहीं कर रहा है। तो हम क्या करें? और ये 2047 तक इसमें क्या चेंजेस आएगा? क्योंकि सच में न्यूज़ देखने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसे न्यूज़ आता है कभी-कभी, इतना चिल्लाते हैं और एक ही चीज़ बार-बार बोले जा रहे हैं, और माहौल ही क्रिएट हो रहा है। Which this is a very challenging question. Who wants to take it? I'll ask you this. I'll happily take it. चलिए, कोई बात नहीं, I'll take that also. So आप कौन सा चैनल देखते हो? दिखाओ ना आपको। That was a googly. I'm not saying specifically नहीं, आपको आप स्पेसिफिक कौन सा प्रश्न चैनल? पूछा गया है, आप स्पेसिफिक जवाब दीजिए। इंडिया टीवी, रिपब्लिक एंड मतलब बहुत सारे देखते हैं, मतलब जो भी मेरे घर पे सब देखते पर हैं। दूरदर्शन तो अभी भी है, दूरदर्शन क्यों नहीं देखते? हाँ, मैं वो भी देखते हैं। एक्चुअली मैं जीपीएससी यूपीएससी की स्टूडेंट हूँ, तो हमें मतलब हमारे कोचिंग क्लास से ये एडवाइस दी है कि आपको अगर न्यूज़ देखना हो तो आप सिर्फ दूरदर्शन ही देखें, क्योंकि बाकी में तो सब सिर्फ चिल्लाते ही है, ऐसा हमें बोला गया है। तो जब आपको कोचिंग क्लास में इतनी अच्छी नसीहत दी गई है, तो फिर लीजिए ना नसीहत। नहीं, बट मैम दिस इज नॉट द आंसर, प्लीज कैन यू। This is the answer. So here is the answer. The answer is that the consumer is king. आप कह रहे हैं कि आपका मन नहीं करता देखने का क्योंकि इतना चिल्लाते हैं, पर आप फिर भी नसीहत मिलने के बावजूद देखते वही हो शाम को जाके। क्यों? भाई, at the end of the day, in a democracy, nobody can be shut down, which is not to say that I agree with that style. But that is the beauty of our democracy. हर तरीके की आवाज़ को, हर तरीके की स्टाइल को, एंड अगर आप लोग सच में देखना बंद कर देंगे ना, दैट इट विल डाई आउट, क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर इज किंग। आप ये नहीं कह सकते, फॉर एग्जाम्पल, एंड यू नो, आई होप द कंपनीज डोंट सू मी, बट सालों से लोग कहते आए हैं कि भाई पेप्सी और कोक पीने से मर जाते हैं, आपके दांत गल जाते हैं, बट द फैक्ट इज दैट दे फ्लरिश बिकॉज द कंज्यूमर इज किंग। जिस दिन कंज्यूमर ने फैसला कर लिया कि हाँ मेरे दांत सच में गलते हैं इससे, मैं नहीं पीऊंगा, इट विल एंड, खत्म हो जाएगा वो। Last सब पीजिए question नारियल पानी। from that side of the aisle.
Sir, please. जो बहुत बड़े दाढ़ी वाले जेंटलमैन हैं। सॉरी, सुजन है। Sorry for that. Sorry for sir. मेरा नाम पृथ्वीराज है। मैं सूरत साइबर सेल में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हूँ। विजुअल मीडिया 2047 को लेके मेरा प्रश्न आप दोनों से है, पद्मदा जी और ये अमन सर। जिस तरीके से डेटा वॉर चल रहा है जो आप बात कर रहे हैं, तो भविष्य भी यही है कि हमारा इंडिया का जो डेटा है या फिर इंडिया का पैसा है जो साइबर क्राइम के माध्यम से इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस कर रहा है विदाउट एनी काइंड ऑफ फिजिकल वॉर। तो उसकी अवेयरनेस को लेके विजुअल मीडिया 2047 तक की क्या सोच रखती है कि लोगों को किस तरीके से अवेयर करा जाए। और दूसरा मेरा प्रश्न आप दोनों से भी है, लेकिन हालांकि ये प्रश्न सरकार से भी बिलोंग करता है, पर एक चीज़ है कि जो हमारी ट्रीटी रहती है अलग देशों से, जिसे हम एमलेट या लेटर ऑफ रेगुलेटरी कहते हैं, तो उसके ऊपर आप लोग कब डिबेट करेंगे ताकि सरकार पर ये दबाव बने कि प्रदेश में बैठी हुई जो कंपनियां, जो प्लेटफॉर्म है, वो हमारे डेटा को हमारे यूज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को तुरंत ही सिर्फ 91 CRP की नोटिस पे दे। तो ये दो प्रश्न हैं आप दोनों के। थैंक यू। भाई इस सवाल को तो मैंने कई बार उठाया। मैंने तो जब शुरुआत की तभी शायद मैंने इसी के सवाल को उठाया कि डेटा आज की तारीख में सबसे इम्पॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी और डेटाक्रेसी के बीच की लड़ाई है। सारे जितने भी मतलब जैसे यूट्यूब पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, उसी तरह से सच और एथिक्स की ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। डेटा लगभग सब बाहर के देशों में है, यहाँ पर कुछ है नहीं। इसको लेकर जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो मैं कर रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने सवाल पूछा सरकार इसको लेकर क्या कर रही है, बतौर पत्रकार मैं उस चीज़ का जवाब नहीं दे सकता हूँ, वो सरकारी जवाब दे सकती है उस चीज़ का। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उसको अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू। Answer that? Okay. So I've been signaled that I have to end this session. ये अमन जी और पद्मजा जी आपको पता है पार्टी दे रहे हैं। No. Only one में 10 हाथ उठे हैं। Time finished. So done. Thank you. They are downstairs. Feel free to mob them. Anand, you are VIP. You shouldn't be interrogating people in public. You should interrogate them in private. Feel free to interrogate them in private. So thank you very much.